Hello, dear students. Today I have to start up with the lecture 6 in the paper Role of Social Science in Mass Communication. We were discussing the unit 1, and this is the last topic that we have to discuss about media and social changes and technology for social changes. These are the two different topics that I have to start up with. And before that, I have done the social changes. What were the concept and the process of social changes? What were the types of social changes? And what were the basic agents about it? So today in media and social change, it is one of the very basic important factor that how media and the social changes both can work together. So the media is an important social institution which caters the social and economic needs of wider social group, and it has been playing the vital role in the development country like India. ये फैक्ट है कि जो एक मास मीडिया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से इंटायर पूरी इकनॉमी और आपके पूरे सोशल कल्चरल ग्रुप्स सब कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं एंड दे आर डेवलपिंग in the country, especially in India. So, the post globalization era, the media has to educate people for changing their traditional attitudes to suit the modern progress needs. ये जो आपने देख रहे हैं कि इतना चेंजेस इतना डेवलपमेंट आ रहा है मास मीडिया के दौरान, तो ये किस लिए आ रहा है? जस्ट बिकॉज टू एजुकेट ऑल द पीपल, टू मेक देम अवेयर, टू बी अपडेट अकॉर्डिंग टू इट. मतलब जो भी चीज़ें बदलाव हो रही हैं कहीं ना कहीं उन सब को ह्यूमन बींग्स के अंदर, जितने भी आप पूरे इंडिया के सिटीजन्स हैं, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंस लाना कि मीडिया की वजह से या इन सोशल चेंजेस ग्रुप की वजह से हमें बदलना है. हाँ, क्योंकि हमें अपडेट रहना है अपने हर चीज़ में, हमें प्रोग्रेस करनी है. ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स दैट सूट्स टू अवर मॉडर्न प्रोग्रेस इंडिया. So in the age of globalization, social movements are somewhat the declining, and because everything is being examined in the materialistic viewpoint, it has been rightly pointed that movement also importantly build up existing the human and material resources. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी मूवमेंट है, जो भी एक आंदोलन जिसे आप कह दो, तो जो मूवमेंट्स चलते थे उस टाइम पे, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से मौजूदा मानव और भौतिक संसाधनों को निर्माण करते हैं. दे आर एग्जिस्टिंग द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज. तो कहीं ना कहीं मास मीडिया इज़ वेरी अ की पॉइंट और की फैक्टर इन द ह्यूमन पर्सनैलिटी लाइफ. सो इन डेवलपिंग द कंट्रीज such resources are limited and problems are more complex. So, about social movement in the age of globalization, it has been pointed that the term globalization has become to dominate discourse of social, economic, and cultural development in the contemporary society. कहीं ना कहीं जो एक ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर में देखा जाए मास मीडिया को, तो जो सोशल मूवमेंट है, this is being pointed out as to dominate discourse whole world, whole globalization with the social, economic and cultural development in the society. So this is a process of globalization that has only affected the urban societies and influencing the rural communities. So in this paper, the attempt has been made to understand that media role in the contemporary society and while changing the perspective of the people, किस तरीके से उनकी सोच को बदला जाए, उनके अंदर डेवलपमेंट किया जाए इस सोशल चेंजेस के अकॉर्डिंग, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. इफ़ मीडिया इज़ यूज्ड प्रॉपरली, अगर मीडिया को बहुत अच्छी तरीके से देखा जाए तो इट कैन एक्सेलरेट the growth rate at one hand, and it can also awaken people for
सब्सटेंशियल डेवलपमेंट, वो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ रेट भी बढ़ाएगी और दूसरे हाथ पे पीपल को, जो लोग हैं उनको जागरूक रखेगी अपने डेवलपमेंट के लिए. सो डिस्कशंस इन दी urban that has been submitted has promoted the view regarding promotion of substantial development. Understanding the different facets of media and social change is the most challenging phenomena for Asia, Africa, and Latin America countries. So, in this, the paper grassroots analysis of the Indian problem has been made. So, media has faced many of the challenges, being in the social society or in this cultural society. So number of the social change it has been occurs, and media has faced all the challenges. It has based the society that India media can educate people for bringing the awareness regarding the substantial development. And the role of the media can be effective and supportive when good governance is attained. ये बहुत सही बात कही गई है कि जो मीडिया है इंडिया की स्पेशली, वो कहीं ना कहीं पीपल को, लोगों को जागरूक रखती है, उनको अवेयर करती है कि किस तरीके से अपने अंदर अपडेशन लाएं, हम प्रोग्रेस करें, डेवलपमेंट करें. और जो रोल है मीडिया का, इट इज़ सो इफ़ेक्टिव एंड वेरी सपोर्टिंग टू द पीपल इफ़ इट इज़ हैविंग द गुड गवर्नमेंट इन अकॉर्डिंग टू इट. अगर कहीं ना कहीं सही साथ है गवर्नमेंट्स का, तो ये मीडिया भी बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत सपोर्टिव है. इट विल डेफिनेटली हेल्प द पीपल टू जनरेट द डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी अबाउट द अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग. So it has been noted that dream will be realized only when honest, efficient, and foresighted selfless governance is manifested in all the fields and all states. So in India, the social economic development program are more in number, but their faster implementation alone can bring the changes. जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन इट कैन बी द फास्टर इम्प्लीमेंट, बहुत तेज़ी से उस पर लागू भी हो सकता है, बदलाव भी किए जा सकते हैं, इफ़ इट कैन ब्रिंग द चेंज अकॉर्डिंग टू. सो इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट इज़ मोटो फॉर 12th 5-year plans in India, and India is trying to maintain and improve the high growth rate. So mass media in India has to bridge both urban and the rural gaps, because fruits of development are not equally shared by the people in villages. They are communication gaps between the media and society, and what is more important is to bring the awareness at different level. So India requires the communication on the more co-equal basics is ethically correct and practically more relevant and useful. यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो मास मीडिया है वो टोटली ब्रिज अप करती है दोनों अर्बन एरिया और रूरल एरिया पे, लेकिन जो उनके बीच का गैप है वो इतनी जल्दी नहीं भर सकता है. वट एवर द फ्रूट जो भी आप गेन कर रहे हो डेवलपमेंट से कैन नॉट बी शेयर्ड इक्वली टू ऑल द पीपल ऑफ द विलेजेस. कहीं ना कहीं जिसको इंटरेस्ट है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन की गैपिंग नहीं है, जो इजी वे में कम्युनिकेशन को समझ पा रहा है, तकनीकियों को समझ पा रहा है, जो भी अवेयरनेस दी जा रही है उसे जागरूक है, तो उसके अंदर वो गैपिंग नहीं रहेगी. लेकिन हालांकि जो विलेजेस के अदर पीपल हैं उनके अंदर ये भी सोच की कहीं ना कहीं कमी है, तो उस वजह से हम उनके डेवलपमेंट को, जो और लोग डेवलप कर रहे हैं उसको हम किसी और के हिसाब से उसे इक्वली शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज नॉलेज इज़ समथिंग दैट पर्सन हैज़ टू गेन. ज्ञान ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपने आप खुद प्राप्त करना होता है, हम किसी की दे करके किसी को शेयर नहीं कर सकते. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफ ब्रिंगिंग दी अवेयरनेस एट डिफरेंट लेवल. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो डिफरेंट लेवल पर अवेयर किया जाता है, दिस हैज़ टू बी ब्रिंग इन दी मास मीडिया. इंडिया रिक्वायर्स कम्युनिकेशन ऑन मोर co-equal basis and ethically correct
and practically more relevant and useful. तो मेन बेसिक कारण यही है कि जितना जागरूक किया जा सके लोगों को इस मीडिया के अकॉर्डिंग, मीडिया की वजह से, दैट इज़ मोर रेलेवेंट एंड यूज़फुल. प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वो. सो दस देयर आर मैनी चैलेंजेस फॉर ब्रिंगिंग द सोशल चेंज इन इंडिया. बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जब मीडिया को एक सोशल चेंज के अकॉर्डिंगली चेंज करना है, बदलाव लाने हैं, डेवलपमेंट करना है, प्रोग्रेस करना है. सो एट प्रेजेंट मास मीडिया इज़ नॉट प्रॉपरली यूजफुल फॉर प्रमोटिंग द सब्सटेंशियल रूरल डेवलपमेंट. जो विलेजेस के पीपल हैं उनके अंदर एक डेवलपमेंट लाना अभी कहीं ना कहीं मीडिया नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. तो कम्युनिकेशन गैप के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द विलेजेस पीपल हैव टू बी लिटरेट. थोड़े बहुत ज्ञानी होने चाहिए, थोड़े बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, जिससे कि चीज़ों को समझ सकें और उससे जागरूकता हो सके. So hence the further perspectives can be more progressive if media power is properly harnessed, and it has been rightly observed that the social capital, by being forming the self group of the collecting actions under the guidance of NGOs, and that the presence of social capital is crucial for the successful function of particularly programs. तो कितनी कहाँ पे क्या कलेक्टिव है, क्या गाइडेंस है जो एनजीओ से रिलेटेड इनका प्रेजेंस होता है, एंड दिस प्रेजेंस ऑफ सोशल कैपिटल इज़ क्रूशियली फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. किस तरीके से हमें ये देखना है कि क्या सामाजिक पूंजी में क्या उपस्थिति महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है, क्या कार्यक्रम, क्या प्रोग्रामिंग हुई है, कितनी सफलता हुई है, ये बहुत मैटर करता है. सो दस ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट वेयर इन द मास मीडिया कैन प्रमोट मोर participatories and development on the development of the different levels. So media can involve the large number of people in social change, and it can pursue the progress values, and finally it can transform the Indian society from tradition to the modern by developing it in the information community. तो कहीं ना कहीं जो एक मीडिया है वो लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल को सोशल चेंजेस में, बदलाव में, डेवलपमेंट में ला सकता है, लेकिन वक्त के अनुसार थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में. तो इट्स परस्यूइंग द प्रोग्रेस वैल्यूज़ एंड इट कैन ट्रांसफॉर्म द इंडियन सोसाइटी को एक मॉडर्न टच, ट्रेडिशन टच दे सकता है बाय डेवलपिंग इट एज अ इंफॉर्मेशन कम्युनिटी विच ब्रिंग rich in information and advanced in technology. So information automations and use of mass media only can be the way for the future change. तो ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट सीन है कि जो मास मीडिया है कहीं ना कहीं सोशल चेंजेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ऑटोमेशन है, एंड इट्स द इंफॉर्मेशन विच कैन बी गिवन with the help of mass media can only be the way of future change. इनके भविष्य को सुधारा जा सकता है मीडिया के ज़रिए. So this was about the media and social change. इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या रिफ्लेक्शन आता है ये बहुत ज़रूरी है. So this is the next topic, technology for the social change. Now in this technology, जो एक तकनीकी चीज़ें हैं वो क्या इम्पोर्टेंस प्ले करती हैं सोशल चेंज में, इसके बारे में जानते हैं. सो इट इंक्रीजिंगली डोमिनेंट रोल एंड शेपिंग आवर प्रेजेंट डे वे ऑफ लाइफ इज बियॉन्ड द क्वेश्चन. सो आवर मोड्स ऑफ लाइफ एंड ऑफ थॉट एंड ऑल ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस आर इन्फ्लुएंस्ड प्रोफाउंडली बाय द मैकेनाइजेशन. सो हर चीज़ इसी पे आधारित है. जो एक टेक्नोलॉजी है हमारा जीवन के तरीके और विचार और हमारे सभी सामाजिक संस्था जो मशीनरी से गहराई से प्रभावित है. नेचुरल है. अब आज के अगर हम अकॉर्डिंग जनरेशन में चलते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एवरीथिंग इज़ मैकेनाइज्ड.
मीन्स एवरीथिंग इज़ वर्किंग विद द मशीन्स। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हाथों से की जाती थी वो अब हाथों से ना करके इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में, जो तकनीकी है, कि अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए मशीन्स का यूज़ होता है। सो मॉडर्न civilizations could have developed in the absence of its technological base. Though the technological and scientific advance has conferred the great benefits on man, and it had also created for him many problems. This is the very most and finest thing जो एक टेक्नोलॉजी है, जो एक मशीनरी लेवल है, उसकी वजह से ह्यूमन नेचर के बिहेवियर में कितने चेंजेस आए हैं। जो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एडवांस्ड है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंसानों को बेनिफिट तो हुआ है। जो काम हाथ से करने में वक्त लगता था, एक काम जो आपको एक छोटा सा काम करने में 1 से 1.5 घंटे लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मशीन से अगर हम करते हैं तो उसकी टाइम लिमिट कम हो जाती है और प्रोसेस बहुत जल्दी से होकर के ख़त्म हो जाता है। बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम्स। बेनिफिट्स भी है, इट इज़ अ बेनिफिशियल ऑल्सो, बट साइड बाय साइड इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम्स लाइक इंसान मशीनों पे इतना ज़्यादा टोटली डिपेंडेंट हो गया है कि दैट पीपल आर बिकमिंग लेज़ी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आलस आ चुका है कि लोग सोचते हैं कि मशीन से हो जाएगा तो हमको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एंड देयरफॉर दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम विद देयर बॉडी पार्ट्स। All sorts of aches are happening and everything is going in. So if there is a plus point benefit for the technology for the human being, so there is also a problems creating for them. For example, now when the industrial revolutions first took place in England, it greatly accelerated the tempo of productions, but at the same time it forced man and woman, particularly men, to stay away from home for long hours and thereby created problems not known before. So this is something, and in today's generation if we talk about, so number of the problems are being faced by the human beings with the process of technological problems also. So the development of the nuclear power has given man the power of abolish all forms of human poverty and simultaneously also the power to destroy all forms of human life. In fact, technological change are followed by far-reaching social changes, and we may discuss these effects from the different angles. तो जो एक फैक्ट बताया गया है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो बड़ी से बड़ी चीज़ों को, मुश्किल को सॉल्व करने के लिए बनाए गए थे। उनके सोशल चेंजेस को जो डेवलपमेंट करने हैं उसके लिए बनाए गए थे, एंड they are here to discuss these all issues. The increasing use and constant improvement of machines has raised tremendously the productivity of labor, that is the output per man hour. And it is the true, both the industrial workers and of farm laborers, greater qualities of goods are thus available. तो जो इंक्रीजिंग जो डेवलपमेंट हुआ है मशीन्स की वजह से, जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है वो नेचुरली ही रेज करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को, प्लस द आउटपुट पर मैन आर जो वो आउटपुट दे रहा है। सो बोथ द इंडस्ट्रियल वर्कर और फार्म लेबर दोनों कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, एंड दस दे आर गुड एज दस अवेलेबल. So most technical inventions have either of two purposes. Either they are intended to create the entirely new product for the direct satisfaction of the human desires and need, or else their purpose is to produce the familiar products more efficiently. यानी जो मोस्ट टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस होते हैं जो मशीन्स के द्वारा किए जाते हैं उनके दो पर्पस हैं.
पहला, या तो वो कुछ ऐसा क्रिएट करें, ऐसा न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करें जो डायरेक्ट सेटिस्फाई कर देता है ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन डिज़ायर्स को, उनकी नीड्स को, या फिर जो पहले से ही प्रोडक्ट है, फेमिलियर प्रोडक्ट है, जो पर्पस एक पर्टिकुलर इंसान यूज़ कर रहा है, उसको थोड़ा मोर इफ़ेक्टिव बनाया जाए और तकनीकियाँ डाल करके उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए. So thus the technology raises our standard of living by providing for over the enjoyment both new kinds of the goods and greater quantities of goods. Technology advance has improved conditions of life for the average man in at least two others way also. So first, it has given him more leisure. Second, it has improved the quality of many goods which he buy. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांस से क्या हमें इम्प्रूवमेंट कंडीशन मिली है एक ह्यूमन बीइंग को, जो उनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एक एवरेज रखती है, वो है पहला तो इट हैज़ गिवन हिम मोर लेजर. लेजर मीन्स बहुत आराम से वक्त अब निकलता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, दे आर रिलैक्सिंग, कहीं ना कहीं आराम भी करते. एंड सेकेंड, इट हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैनी ऑफ द गुड्स. जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप हाथ से बनाते थे उसमें वो एक क्वालिटी, वो फिनिशिंग नहीं आती थी, लेकिन मैकेनिकल एक टेक्नोलॉजिकल के इफ़ेक्ट से उसके प्रोडक्ट की गुड्स में अब इतनी ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूव्ड है कि पीपल आर सॉर्टिंग टू बाय, जहाँ पे इंसान देखता है और उसको ख़रीदता है. सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस quite a number of jobs that requires specialized skills and knowledge. Thus, there are engineers who plan and design machines and factories, skilled constructions, workers, plumbers, electricians, and great varieties of machinists, and the mechanics who are engaged in making, operating and repairing machines. ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे एग्जिस्ट करता है और जहाँ पे ये सारी चीज़ों नंबर ऑफ़ जॉब्स आर बीइंग रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशलाइजेशन. अगर हम कहीं भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो नेचुरल है कि नंबर ऑफ़ जॉब वैकेंसी ही एक टेक्नोलॉजी में ही मिल जाएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंजीनियर्स जैसे चाहिए जो डिज़ाइन कर सके मशीन्स को, फैक्ट्रीज स्किल्स होने चाहिए इंसानों में जो कंस्ट्रक्ट कर सके वर्कर्स को, प्लम्बर्स होने चाहिए, इलेक्ट्रीशियंस, ग्रेट वैरायटी ऑफ मैकेनिक्स, देन मैकेनिक्स हु आर एंगेज्ड इन मेकिंग, ऑपरेटिंग एंड रिपेयरिंग द मशीन्स. तो जॉब्स इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होती है. There are also people who are especially trained in the organization and administrations of industrial enterprise. Natural है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से पीपल ऐसे होते हैं जो बहुत ट्रेंड होते हैं कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में. सो इन एडवर्टाइजिंग एंड इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑल्सो. सो इन कीपिंग द अकाउंट एंड रिकॉर्ड they are kept. In other words, you could say that technology has brought into being new occupational classes and open classes structures, replacing the closed social systems of old. So modern technology has in many ways accelerated the tempo of human life. Technology has also indirectly facilitated the growth of democratic ideas by transforming the position of labor from one of the status to the one of the contract. जब टेक्नोलॉजी है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक फैसिलिटी है, एक ग्रोथ की एडवेंचरस है, जहाँ पर उसने ग्रोथ किया है डेमोक्रेटिक पीपलों के लिए, लोगों के लिए, जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक आइडिया है, जहाँ से एक पोजीशन पर्टिकुलर लेबर which is being transformed to the another status and contract and bringing into the existence the challenge of organized industrial groups, particularly the organizations of labor to the older forms of authority. तो देखा जाए
जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा आगे हो चुकी है कि जिसकी वजह से पीपल आर इन द बेनिफिट्स मोड, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग सेड दैट टेक्नोलॉजी फॉर सोशल चेंज। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो जो एक तकनीकी है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल चेंजेस के लिए है कि कहीं ना कहीं जो आपकी एक सोसाइटी है वो पीछे ना रह जाए, लोगों की सोच पीछे ना रह जाए। बदलाव जब होते हैं, इम्प्रूवमेंट होते हैं, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है, ये इसका फैक्टर कुछ अलग है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, and I hope that it is clear to everyone the concept of media and social change, and the second topic, technology for social change. Just try to read it very carefully and understand. If you people face any sorts of any problem, do contact me, and please attempt the given questions which are being given according to it. So that's all for today. Thank you, class. Our unit is also over.